مٹی والی چڑیل۔ سبھاش اپنی بیوی میرا اور 4 بچوں کے ساتھ نئے گھر میں آئے تھے۔ وکرانت ان کا بڑا بیٹا تھا۔ آپ نے بہت اچھا کیا گھر خرید کر۔ اس وقت ہم لوگوں کو گھر کی سخت ضرورت تھی۔ ویسے بھی آج کے وقت میں خود کا گھر ہونا واقعی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہاں میرا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، خود کا گھر ہونا نہایت ضروری ہے، اسی لیے ہم نے یہ گھر خریدا ہے۔ چلو بچوں، بہت رات ہو گئی ہے، اب آپ لوگ اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں۔ وکرانت اپنے تینوں بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ رات کے 11 بجے میرا کو محسوس ہوتا ہے جیسے آنگن میں کوئی گھوم رہا ہو۔ میرا دروازہ کھول کر باہر دیکھتی ہے۔ انہیں ایک لال لہنگا چولی پہنے ایک لڑکی ان کے بچوں کے کمرے کی طرف گھوم کر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بال اس کی کمر سے نیچے تک ہیں۔ کون ہے آپ؟ اتنا کہتے ہوئے اس کے قریب جاتی ہے۔ لڑکی پلٹ کر دیکھتی ہے، جس سے میرا بہت ڈر جاتی ہے۔ اس لڑکی کا حلیہ بہت ہی خوفناک تھا۔ پھر میرا بہت تیزی سے چلتی ہے۔ پھر وہ لڑکی انہیں باہر کی طرف کھینچتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ یہ آواز سن کر سبھاش اور بچے جاگ جاتے ہیں۔ سبھی آنگن میں آتے ہیں۔ میرا، آپ کہاں چلی گئیں؟ امی کہاں پر ہیں؟ اتنا کہتے ہوئے وہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ ابا، وہ دیکھیں، گیٹ کھلا ہوا ہے، شاید امی باہر گئی ہیں۔ لیکن اتنی رات کو میرا باہر کیوں چلی گئیں؟ آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ سبھی بچے اور سبھاش ٹارچ لے کر باہر میرا کو تلاشتے ہوئے آواز لگاتے ہیں۔ میرا، میرا! لیکن آس پاس کے جنگل سے کوئی آواز نہیں آتی۔ پھر وہ صبح تک تلاشتے رہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملتا۔ صبح وہ اپنے گھر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنگن میں میرا کی لاش پڑی تھی۔ ان کا مٹی سے بھرا ہوا منہ، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے منہ میں بہت ساری مٹی ڈال دی ہو اور دم گھٹ کر ان کی موت ہو گئی ہو۔ پوسٹ مارٹم کے لیے میرا کی لاش کو بھیجا گیا تو پتہ چلتا ہے کہ مٹی آس پاس کے ایریا کی ہی تھی، لیکن یہ حرکت کس نے کی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ رات میں سب سوئے ہوئے ہیں۔ پھر آنگن میں کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ وکرانت کی چھوٹی بہن ونی کی آنکھیں کھلتی ہے۔ اس وقت رات میں کون ہنس رہا ہے؟ کہیں امی تو نہیں آ گئی؟ گیٹ کھول کر وہ باہر آتی ہے۔ وہاں باہر کرسی پر وہی خاتون بیٹھی تھی۔ کون ہے آپ؟ اور اس وقت ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ آپ اندر کیسے آئیں؟ اتنا کہتے ہوئے اس خاتون کے قریب جاتی ہے۔ اس خاتون کے پاس جا کر، کون ہے آپ؟ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون ونی کی طرف گھومتی ہے اور وہ ونی کو اپنے لمبے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی باہر کی طرف کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ آواز سن کر سب جاگ جاتے ہیں۔ اس بار سب ڈرے ہوئے تھے۔ چھوٹا بیٹا، ابا، باجی کہاں چلی گئیں؟ یہ بھی امی کی طرح اچانک سے غائب ہو گئیں، اور دیکھیے آج پھر گیٹ کھلا ہوا ہے۔ ہم نے تو گیٹ کو ٹھیک سے بند کیا تھا، ہمیں یاد ہے، پھر یہ گیٹ کیسے کھلا ہے؟ یہ سب کس نے کیا؟ سب لوگ ونی کو ڈھونڈنے کے لیے پھر سے باہر جاتے ہیں۔ باہر کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ وہ پھر پوری رات تلاشتے رہتے ہیں۔ صبح اپنے گھر آتے ہیں۔ ونی کی لاش بھی آنگن میں پڑی رہتی ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے اس کی ماں کی لاش تھی، پورا مٹی سے بھرا ہوا چہرہ۔ یہ دیکھ کر سارے بچے ڈر جاتے ہیں۔ آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟ کون ہے ان سب کے پیچھے؟
लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस आती है, छानबीन करती है और चली जाती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है विनी और उसकी अम्मी के मुंह में मिट्टी दोनों एक जैसी थी। सुभाष अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी उन्हें बाहर किसी के रोने की आवाज आती है। सुभाष आकर बाहर देखते हैं, उनका बेटा विक्रांत बैठा हुआ रो रहा था। विक्रांत, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अब्बा, ये सब हमारी ही गलती है। ये सब हमने ही किया है। हमारी वजह से ही हो रहा है। क्या क्या किया आपने? हमें बताएं, क्या आपने अपनी अम्मी और बाजी को मार डाला? नहीं नहीं अब्बा, ये सब हमने नहीं किया। हमने जो किया है वो। विक्रांत कहते कहते चुप हो जाता है और बहुत ही तेज चिल्लाता है। चली जाएं यहाँ से, चली जाएं यहाँ से। हमारे मकान और हम लोगों को छोड़ दें। विक्रांत, आप किससे बात कर रहे हैं? विक्रांत! अब्बा, वो आ गई। हमें बचा लो अब्बा। इतना कहते हुए विक्रांत अपने अब्बा से लिपट जाता है। आपको कुछ नहीं होगा बेटा, हमें बताएं क्या हुआ? तब विक्रांत उन्हें सब कुछ बताने लगता है। अब्बा, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो हमारे दोस्तों ने बताया कि मिट्टी वाली चुड़ैल सबको पैसे दे देती है, बस जरूरत होती है उसे अपने बस में करने की। हमने अपने दोस्तों से पूछा उसे बस में कैसे किया जा सकता है। दोस्तों ने बताया कि मिट्टी वाली चुड़ैल को बस में करने के लिए लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं। फिर क्या आपने उसे अपने बस में किया? हाँ अब्बा, लाइब्रेरी की किताबों में लिखा होता है कि चुड़ैल को कैसे बस में किया जाता है। फिर क्या था, हम लाइब्रेरी चले गए। हमने वहां से मिट्टी वाली चुड़ैल को बस में करने की किताबें उठा ली और दोपहर में जंगल में जाकर उन्हें पढ़ने लगे। उनमें लिखे मंत्रों को हमने पढ़ा तो मिट्टी वाली चुड़ैल वहां हाजिर हो गई। लेकिन उसका हुलिया देखकर हम इतना खौफ खा गए कि छटपटाते हुए वहां से दौड़ पड़े। हमें लगा वो मिट्टी वाली चुड़ैल हमारा पीछा छोड़ देगी। लेकिन उसने आपका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ अब्बा, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो आए दिन हमें दिखाई देती है। जैसे ही हमने मकान बदला वो हमारे साथ यहाँ भी आ गई। वो हमसे कुछ चाहती है, शायद किसी की कुर्बानी, और हम उसे वो नहीं दे सकते, इसीलिए वो हम लोगों को मारने लगी है। सुभाष को उसकी बातें समझ में आ गई। वो रात में अपने तीनों बच्चों को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक को वो सारी बातें बताई, जिस पर तांत्रिक ने कहा, इस बच्चे ने चुड़ैल को जगा दिया है और ये सही कह रहे हैं। चुड़ैल जागने पर कुर्बानी मांगती है जो इसने नहीं दी। जब तक उसे उसकी कुर्बानी नहीं मिलेगी वो ऐसा ही करती रहेगी। बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें उस चुड़ैल से बचा लीजिए। उससे बचने का बस एक ही तरीका है, उसको वापस भेजा जाए। उसको वापस भेजने के मंत्र उस किताब में ही होंगे। वो किताब कहाँ है? जंगल में। विक्रांत उन लोगों को लेकर वहां जाता है जहां वो किताब उसने पढ़ी थी। किताब वहीं पर पड़ी थी, लेकिन किताब के आधे पन्ने फटे हुए थे, खासकर वो पन्ना जिसमें लिखा था कि उस चुड़ैल को वापस कैसे भेजा जाए। इस पर तांत्रिक कहते हैं, चुड़ैल बहुत चालाक है, उसने खुद को बचाने के लिए किताब फाड़ दी है। तो क्या अब आप हमें नहीं बचा सकते? क्या अब वो हमें मार डालेगी? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिर तांत्रिक उनके घर में जाकर मंत्रों की पढ़ाई करते हैं तो वो चुड़ैल हाजिर होती है और गुस्से से आंख लाल कर लेती है और कहती है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमें इस लड़के ने जगाया है, हम इसको साथ लेकर ही जाएंगे।
साथ में इसके पूरे परिवार को भी। नहीं, तुम इसे लेकर नहीं जा सकती। हम तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। आप हमें नहीं रोक पाएंगे। हम मिट्टी की चुड़ैल है और हमें बस में कर पाना इतना आसान नहीं। आपको कैसे काबू करना है हमें सब पता है। अब अगर आप इतनी ही ताकतवर हैं और आप चाहती हैं कि इस लड़के को लेकर जाएं, तब ठीक है, इस लड़के को लेकर चली जाएं, बाकी लोगों को बख्श दें। नहीं, हमें जो बुलाता है, हम या तो उसके परिवार की हिफाजत करते हैं या फिर उसके पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिससे चुड़ैल विक्रांत के अंदर दाखिल हो जाती है। विक्रांत की आंखें पूरी लाल थी। विक्रांत गुस्से से बोला, आपने अपने मंत्रों के जोर पर हमें इसके अंदर दाखिल तो कर दिया है, लेकिन याद रखें कि हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हैं। विक्रांत के मुंह से मिट्टी ऐसे गिरती है जैसे पानी गिर रहा हो। देखते ही देखते मिट्टी का ढेर लगने लगता है, जिस पर तांत्रिक मंत्र फूंक देते हैं और गंगा जल उस मिट्टी पर छिड़कते हैं। गंगा जल और मंत्रों की ताकत से मिट्टी अपने आप खत्म होने लगती है और चुड़ैल चिल्लाने लगती है, हमें बख्श दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, अब तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तुम अब यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओगी। और देखते ही देखते सारी मिट्टी गायब हो जाती है। विक्रांत बेहोश होकर गिर जाता है। फिर तांत्रिक कहते हैं, वो चुड़ैल मिट्टी की चुड़ैल थी, जिसको गंगा जल ने अपने अंदर बसा लिया है। वो अब दोबारा यहाँ नहीं आएगी। और तांत्रिक सही थे। फिर वो मिट्टी की चुड़ैल ना तो किसी को दिखाई दी और ना ही उस घर में किसी की मौत हुई। तांत्रिक ने उस मकान और उनके परिवार को बचा लिया। विक्रांत ने अपने अब्बा से वादा किया कि वो कभी भी ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ेगा और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।